tell आप yourself. जैसे इसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसे ही काम करेगा. आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे नहीं अब मैं थक गई, मेरी राइड खत्म करनी है, मुझे ड्रॉप करना है, तो आप माइंड आपको वैसे ही ट्विस्ट कर देगा कि छोड़ो इसको, नहीं हो रहा है. आप माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं नहीं ठीक है करते हैं, चल के देखते हैं, तो माइंड अपना चलाएगा. एज इज जस्ट नंबर. आप किसी भी एज में कोई भी काम अगर सोच लेते तो कर सकते हो. हर इंसान में कैपेबल है वो. किसी का जिम में होगा, किसी का रनिंग में होगा, किसी का स्विमिंग में होगा, है सब में. आपको किस तरह से आप निकालते हो और कैसे उसको प्रूव करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है. I am Venki, a working professional in IT as well as an amateur masters athlete and a coach for endurance sports. You are listening to the Working Athlete podcast. Here, I talk to working athletes from all walks of life and experts from various sports to provide you with inspiration, training tips, and lifestyle advice. If this is something that interests you, I have a small request from you. Please subscribe to the channel on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts from. You can also let me know what you like and what you would like to listen to more of by commenting in the comment section on YouTube. I promise to do my best to improve with each episode and bring you the best content that helps you and me get better each day. In this episode, I talked to an amazing rider, Renu Singhi. Renu ma'am is an amazing woman who accomplished some crazy feats of endurance in ultra cycling. A housewife, a mother, and a grandmother who started cycling very late, she has completed the 1200 kilometer Paris-Brest Paris, the 1600 kilometer London Edinburgh London, and recently completed the 4200 kilometer North Cape Challenge. We met during the Tour of Nilgiris 2024 and recorded this during the rest day. In this episode, she shares her inspiring journey in cycling and her experience of completing PBP, LEL, and North Cape. She was only comfortable talking in Hindi, so we recorded the interview in Hindi and I tried to speak whatever broken Hindi I could, but asked most of the questions in English. If you are not a Hindi speaker but are watching this on YouTube, the subtitles should help. I hope her story inspires you as much as it inspired me. If it does, please share it with your friends to show that nothing is impossible and age is just a number. This episode is brought to you by The Bike Affair. If you are in search of a one-stop destination that caters to all your cycling needs, our today's sponsor, The Bike Affair, is the perfect place to check out. I have known the founders of The Bike Affair, Krish and Gokul, personally for nearly 15 years now. In fact, my first century ride was with Krish back in 2008. They are both exceptional human beings and entrepreneurs that believe in providing exceptional service to their customers, and it shows. With over 14 years of experience, the Bike Affair has established itself as a trusted source offering honest advice and exceptional service. They are offering a special treat for the listeners of this podcast. You can enjoy a 10% discount on your first order by using the code BikeyVenki on their website. So if you are in Hyderabad, visit their store in Kondapur, or if you are anywhere else in India, shop online by using the link thebikeaffair.com. I will leave the link in the show notes. Now, enjoy the podcast. Hello, Renu ma'am. Hi. Welcome to the Working Athlete podcast. Thank you. It's a pleasure having you on the show. Thank you. So, here we are sitting in Ooty, face to face. I've followed your journey on social media, of course, and I think even once, Dr. Rama talked and I talked about you and all the great things that you're doing, right? And I always wanted to speak to you about your journey on this podcast. And we are in Tour of Nilgiris, got a chance, you came here. But unfortunately, the inclement weather means that we are not able to ride, and we got, this opportunity to use this for
sitting and talking, right? Thank you, thank you. And so let us start by talking about what was your relationship with sport, growing up, if any? नो, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्स से, हाँ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं एक हाउसवाइफ थी और अभी भी हूँ। हाँ, और मेरी साइकिलिंग जर्नी कभी भी ये सोच के नहीं हुई थी कि मैं साइकिलिंग करूँगी और मैं ये 200, 300, 400, 600 पीबी, एलईएल, नॉट कैप, कोई कभी ड्रीम था या कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस और कभी जाऊँगी। चीज़ें बनती गई, रास्ते खुलते गए, मैं आगे बढ़ती गई और मैं चलती गई। मगर कब और कैसे शुरू हुआ ये सब? ये 2016 की बात है। हाँ। हम लोग जैन कम्युनिटी से हैं, तो हमारे पर्युषण के फास्ट होते हैं। तो मेरे 8 डेज के फास्ट थे, तो मैं सिर्फ पानी पे रहती हूँ उस दिन 8 दिन तक। 8 दिन? 8 दिन कुछ भी नहीं खाना होता है उसमें, टोटल पानी। और रात को 6 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक भी पानी नहीं। फिर मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 6 o'clock तक बस। राइट। तो वो मेरे फास्ट थे। तो मेरा छोटा वाला बेटा मयंक है, वो जोधपुर में काम कर रहा था। तो मेरी मदर ने उससे बोला, तेरी मम्मी के 8 डेज के फास्ट है, तो मम्मी से मिलने नहीं जा रहा है? तो बोले, मैंने आज तो बात करी है मम्मी से, मम्मी तो ठीक लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मम्मी इतने दिन से भूखी है। आप कहते तो चला जाता हूँ मिलने। तो मुझसे मिलने आया, एक दिन रुका, मेरा फास्ट खत्म हुआ और फिर बोलता है अब तो आप ठीक लग रहे हैं मुझे, आप मुझे साइकिल दिलाने चलो, मुझे आयरन मैन करना है। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन रुक जा, चलते हैं। बोले आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ गाड़ी में चलना है, साइकिल मेरे को लेनी है, पसंद करनी है, आपको तो सिर्फ हाँ करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके साथ गई, तो उसने अपनी साइकिल पसंद करी और फिर मैंने कहा मैं भी एक ले लूँ क्या? बोले आप क्या करोगे? मैंने कहा जो तू करेगा वो मैं भी करूँगी। तो आपको आती तो है नहीं। तो मैंने कहा मैं सीख जाऊँगी धीरे-धीरे चीज़ें करना। बोले आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं जियाना को और जो बच्चे हैं इनको मैं साइकिल पे घुमाऊँगी और ग्रोसरी खरीद के लाऊँगी। बोला ठीक है ले लो आप। तो फिर मैं, बस वो दिन का था, उस दिन मैंने साइकिल खरीदी। तो मैं वहाँ पे सुनील शर्मा जी, जिनको हम गुरुजी बोलते हैं, तो मैंने उनको बोला गुरुजी मुझे वैसी साइकिल दो जो लेडी बर्ड का ऐड आता था ना, जिसमें आगे टोकरी हो, और इस टाइप की मुझे एक साइकिल चाहिए। बोले मैम आपने पहले साइकिल चलाई है? मैंने कहा कॉलेज टाइम में चलाई थी, अब 30 साल हो गए, 30-32 साल से अभी तो चलाई नहीं है। तो बोला आप ये जीटी की है, ये ले जाओ, ये आपके हाइट की भी है और आप चला लोगे, आप थोड़ी थोड़ी चलाना, फिर हम आपको अपने कम्युनिटी में जो बाइकिंग ग्रुप है उसमें ऐड कर लेंगे। तो मैं साइकिल पहले तो घर आ गई, लाई नहीं। घर आके मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैंने एक साइकिल देखी, ले लूं? तो बोले ठीक है ले लो। उनको नहीं आइडिया था कि 25,000 की साइकिल लेके आएगी। हम दोनों की साइकिल घर आई तो क्या साइकिल थी ये? दोनों क्या लेके आए 60,000 में? क्या चीज लेके आए हो? 60,000 का बिल आया। कौन सी साइकिल थी? कौन सी साइकिल है? मैंने जीटी ली थी और उसने स्विंग ली थी। अच्छा। बेटे ने। तो मैंने कहा वो हेलमेट आया, लाइट आई और ये करके इस टाइप से एक साइकिल आई है। तो वो कुछ नहीं बोले। तो मेरे को गुरुजी बोले कि आपने अपने बेटे को दिलाने के लिए एक बार भी पैसे नहीं पूछे, आपने तुरंत हाँ कर ली, आप अपनी साइकिल के लिए क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा उसकी ऑथोरिटी मेरे पास है, मेरी ऑथोरिटी उनके पास है। तो मैंने कहा बिना पूछे हुए कैसे ले सकती हो? फिर ऐसे करके साइकिल आ गई। फिर क्या हुआ कि साइकिल मैंने रख दी लाके, क्योंकि फास्ट थे, लग रहा था कि एनर्जी नहीं होगी, 8 दिन खाया नहीं है, चलाऊंगी, क्योंकि डर तो ये था कि गियर बदलने नहीं आते थे। कि ले गई और नहीं चली तो क्या होगा, हंसी उड़ जाएगी। फिर 5-6 दिन बाद छोटा बड़ा वाला बेटा आया सीढ़ी ऊपर से। क्या हुआ मम्मी? मैंने कहा क्या क्या हो गया? बोला आपका भी जोश हमारी तरह ठंडा हो गया क्या? साइकिल खरीद के रख ली, चलाई नहीं। हमको बोलती थी कि है ना तुम चीजें खरीद लेते हो और फिर चलाते नहीं हो, यूज नहीं करते हो। उस दिन की वो बात जो लगी ना, भैया अब तो रेणु सिंह उठ, कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर तो सुनेगी। बस फिर मैं अगले दिन साइकिल लेके निकली। तो मैं, हमारा जगतपुरा का पुल है, मैं उस पे ब्रिज पे नहीं चढ़ी, नीचे से आ गई। पुल पे इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि मुझे गियर बदलने नहीं आते। अगर ऊपर चढ़ गई, मैं नहीं उतर पाई तो
तब तक का आपका, दिस इज 2016, आपका हम्म। एज कितना था? मेरा था 51। 51। तो मैंने 51 में चालू की, फिर मैंने अपनी उसमें होशियारी में गियर बदल दिया, वो हाँ। लूज पैडलिंग हो गई जो चढ़ाई वाली होती है। हाँ, करते करते जैसे तैसे घर पहुंची Figure out और घर कर ला ली। के रख दी। हाँ। 2 दिन बाद बेटा आया जोधपुर से, बोले क्या हुआ? मैंने कहा ये तो खराब हो गई, साइकिल नहीं चल रही है। लूज हो गई है लूज हो गया। तो बोला मैंने आपको 2 और 5 पे सेट करके दे दिया, इसको बदलना मत, अब इसी पे ही चलाना। हाँ। फिर बस बहुत दिन तक उसी पे चलाई। फिर एक थार कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेट करने चली गई 60 किलोमीटर में। उसमें सेकंड आ गई, और वो भी मस्ती मस्ती में चलाई, कोई एफर्ट नहीं लगाया। हाँ। वहां पहुंची, गुरुजी बोले आप तो एमटीवी में सेकंड आए। मैंने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ में, मैं ही मिली क्या आपको? बोले नहीं नहीं आप पक्का सेकंड आए हो। मैंने कहा मैं तो इतनी आराम से चलाई, मैंने तो कुछ कंपटीशन के हिसाब से चलाई भी नहीं है, हाँ। वैसे ही चला। बोले नहीं आपने बहुत अच्छी चलाई है, आप सेकंड हो। हाँ। बस वहां से हौसला बढ़ा, और फिर नवंबर में 1-2 बार चलाई। और फिर हम 3 दिसंबर को बीआरएम थी 200। किसी ने बोला 200 बीआरएम है, चलें क्या? मैंने कहा हाँ अविरल, अपन चल के आते हैं, अपने से होएगी तो अपन करेंगे, नहीं तो 50 से टर्न लेके वापस आ जाएंगे। अब गुरुजी और अभिषेक को बहुत टेंशन थी कि ये लोग 200 करने, रेनू मैम गई है और कभी 100 भी नहीं चलाई है, 60 के ऊपर भी नहीं चलाई है, 200 करने चली गई, पता नहीं क्या होगा। वो मैं अभिषेक से बार बार पूछ रहे थे कि वो बराबर चला तो रही है, पर हाँ हम लोग टाइमली 10 आवर में खत्म करके हम लोग 200 किलोमीटर आ गए। अरे वाह। हाँ। वो फर्स्ट बीआरएम थी मेरी। हाँ, हाँ। तो this was like 2 months after you got a cycle, around that. And from there, excuse me हाँ, हाँ, when हाँ। I speak in English because I'm हम्म। not so comfortable with हम्म। it. तो उसके बाद कैसे चला कि like उसके बाद हर मॉर्निंग में वीक में 2 दिन सोचा हुआ था चलाती थी, करीब 40 किलोमीटर फर्स्ट weekdays में? वीकडे में। और जिम करती थी थोड़ा बहुत। हम्म। जिम में करती मैं, एक्चुअली में वो था मेरा कि मैं बच्चों को छोड़ा और मैं रनिंग करती थी। मैं 10 किलोमीटर डेली रनिंग करती थी पहले। ओह, तो ये जो एंड्योरेंस का ट्रेनिंग था, हाँ हाँ कि इट्स नॉट लाइक यू स्टार्टेड एट 51 जस्ट विद साइक्लिंग, नहीं, तो आप एक्टिव थे? एक्टिव थे। मैं रनिंग थी, रनिंग में कभी कभी जिम भी जा रही थी। और अगर मैं कुछ नहीं होता स्कीपिंग 1000 घर पे कर लेती थी। मैं सूर्य नमस्कार 101 कर लेती थी। तो मेरा वो था, मेरा बॉडी तो में। अब तो ये सेंस हो रहा है कि आई मीन इट मेक्स सेंस नाउ कि there is like a little bit of base of fitness coming into it, right? That is also very important to understand, because you just can't just start and do like 200 ऐसा। वो क्या हो जाता है कि if you end up doing something like that, you might end up injuring yourself or something. When you have the base of fitness, जो भी है, रनिंग पीछे से चल रहा था, जिम है, these are all very important। मतलब बच्चे मेरे ख्याल से, मेरे बड़ा बेटा कोई 10th या 11 ईयर का होगा तब भी मैं रनिंग, जिम नहीं थी तब, रनिंग में बहुत थी। और मैं स्कीपिंग बहुत करती थी, 1000 2000 3000 कंटिन्यू करती रहती थी। तो मेरे में वो स्टेमिना डेवलप था। बच्चों के साथ गई तो उनके साथ बैडमिंटन खूब खेले, बड़ों के साथ 3-3 4-4 5-5 कंटिन्यू मैच, सिंगल मैच, डबल मैच खेले जा रही हूँ 2-2 घंटा 3-3 घंटा। तो वो स्ट्रेंथ तो थी, मुझे लगता है ऐसा। वही तो समझना जरूरी है। जो भी लिजनर्स हैं उनको भी समझना जरूरी है कि ऐसा कुछ करते रहना चाहिए। उस पे बिल्ड करना आसान होता है। हाँ। तो मेरी ये सब चीजें धीरे धीरे मुझे सपोर्ट करती रही, और मैं फिर धीरे धीरे इस लाइन में घुसी। तो मुझे कहते हैं भगवान कोई ना कोई अपना रास्ता दिखाता है या कोई आपको रास्ता देता है। अगर बेटा खरीदने नहीं जाता तो मैं साइकिल नहीं खरीदती, और मैं इस रास्ते पे भी नहीं आती, और मुझे इस नाम से भी पहचान। ये था कि आपको इंटेंट था, पहले से ही इंटेंट था कि आप मुझे एक्टिव रहना है। हाँ। इसलिए आप रनिंग करती थी। हाँ, मुझे जिम में 2-3 बार मुझे बेस्ट अवार्ड भी मिले, क्योंकि इस एज में मैं करीब 40 वेट उठा लेती थी। मैं भी नहीं उठा पाता हूँ ये सब। बिल्कुल। तो मतलब हमारा जो ट्रेनर था वो हमसे कोर एक्सरसाइज में
पुशअप्स 100 करवाता, मैं 100 पुशअप्स हम्म, कंटिन्यू कर लेती थी 20 के 5 लैप्स में। सिटअप्स में 500,000 कंटिन्यू कर लेती थी। आप तो और कुछ मगर let us talk about the BRM thing, right? So you've done your first BRM to 200 17, 18 17-18 में। So क्या फर्स्ट 200 कर दिए, देन वो SR हो गए थे क्या when 17-18 का सीजन में क्या? So what was that experience like? क्या what was the most memorable or difficult thing that you टू फर्स्ट 200 तो इजी था। 100 किलोमीटर टोटल मैंने अलोन किया, नॉन स्टॉप, पहली बार रुकी नहीं, कोई था ही नहीं साथ, अपने धुन में चलाती गई और पहुंच गई। 200 हो गया। 300 में हम लोग काफी लोग साथ में थे। 400 में हमारा मेजर एक्सीडेंट हुआ। हाँ, हम लोग एक ही लेन में सब चल रहे थे, तो वो राफ्टिंग कर रहे थे, तो पीछे वाले को किसी ने मोटरसाइकिल ने हिट किया, तो 2-3 लोग गिरे। हाँ, हरीश था, विरल था, मेरे पीछे वाले में बैंड आ गया था, उसके आगे गुरुजी थे, वो भी गिरे, सब एक साथ गिरे। एक गिरता है तो फिर वो सारे गिरते ही हैं। गिर जाते हैं। 400 में हुआ तो भी हमने टाइमली उसको फिनिश कर लिया। फिर 600 में था, तो 600 में और गुरुजी और काफी लोग थे, तो 600 में गुरुजी रात को सो गए थे। फिर उसको मेरे को लगा कि वो कहीं ऊपर तो नहीं चलेगा, वो रोड पे एकदम सो गए। रात एकदम घना अंधेरा, कोई भी लोग नहीं है, 2 बजे का टाइम है, सो रहे हैं। कंडक्टर लोग हमको देख रहे हैं कि अकेली औरत क्या कर रही है इसके साथ, और ये सो रहा है। फिर उसको हमको चाय दी, तो एक बार तो लगा कि चाय पी लूं, गुरुजी को भी पिला दी। फिर मैंने नहीं पी, मैंने कहा क्या मालूम इसमें किसने कुछ मिला दिया तो हम ही बेहोश हो गए, तो फिर क्या करेंगे। फिर जैसे तैसे वहां से निकले, फिर मैं और गुरुजी में डिस्टेंस हो गया, तो हम किशनगढ़ से आगे निकले, तो मोटरसाइकिल वाले ने मुझे धक्का मार के गिराया रोड पे। गिरी, फिर उठी, यहाँ निशान पड़ गए, इतना तेज लगा था कि पूरा रेड हो गया यहाँ से। वो क्यों करते हैं यार ये वैसे? फिर भी उस दिन हमारी पहली 600 हो गई थी 38 आवर्स में, मतलब इतना कुछ करने के बाद। और बस ये था फर्स्ट में। फिर सेकंड BRM में हम लोग रमा मैम हम लोग साथ थे 18-19 में। फिर हमको बोला कि किसी को पेरिस जाने को मिलेगा कि अगर ये वाली BRM करते हैं तो पेरिस में जो 90 आवर्स वाली होती है PVP वो करेंगे। तो हम PVP तो जाना कम था, PVP घूमना ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंट था कि चलो पेरिस जाएंगे, घूम के आएंगे, 10-12 लोग जाएंगे, और होगा तो कर लेंगे, नहीं तो घूम घाम के आ जाएंगे। फिर पेरिस हम लोग, मैं, रमा मैम और अभिषेक, आदित्य, काफी लोग गए, नितिन सैनी। फिर धीरे धीरे हम लोग बिछड़ते गए, लास्ट में अकेली बच गई। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, थोड़ी तो बचे, कर ही लेती हूँ उसको पूरा। ये इतना सिंपल बता दिए आपने। ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट राइड, 1200 किलोमीटर्स का पेरिस ब्रश पेरिस, ये 2 सेंटेंस में थोड़ी ना होता है। मैंने बिल्कुल लोड नहीं लिया, पूछ लो इनसे किसी की, मैं अपने फेस पे चलती गई। मैं और एडी साथ में थे, और रमा मैम और हम लोग सब साथ में थे। 400 किलोमीटर पे रमा मैम को प्रॉब्लम हो गई, वो ड्रॉप आउट हो गए। 200 पे 300 पे अभिषेक, आदित्य भी चले गए। फिर मैं और एडी रहे, एडी और हम लोग भी 550 के बाद अकेले हो गए। फिर 600 किया, 6 में यू टर्न था पहले। सर 600 छोड़ दूंगे, होगा तो करेंगे, नहीं तो घूम के वापस आ जाती हूँ। अरे 6 तो हो गई, कुछ हुआ ही नहीं, चलो आगे चलते हैं, 100 किलोमीटर और करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊंगी। ऐसे करते करते 100 चलाती गई, और मैं आराम से। फिर मैं 780 पे जो हमारा चेक पॉइंट था, वहां मैं रास्ता भूल गई। वहां क्या अंधेरा हो गया, और मेरे साथ कोई भी नहीं था, और वो जो चेक मार्क थे वो लोगों ने हटा दिए थे वहां से। तो जो रोड सीधी जानी थी, मैंने हाईवे पकड़ ली, और मैं हाईवे पे आके रुक गई। तब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं लैंप पोस्ट के नीचे आगे बैठ गई आराम से, मैंने कहा कोई राइडर जाएगा तब मैं निकल जाऊंगी। आधा घंटा बैठी, उसके बाद रियलाइज हुआ कि मैं गलत आ गई हूँ, कि इतनी देर कोई नहीं आया, इसमें मैं गलत हूँ। फिर मैंने अपना ब्रेवे कार्ड दिखा के रास्ता पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ है, ये कहाँ, क्यों फ्रेंच लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, तो किसी ने नहीं बताया। फिर वहाँ एक अंग्रेज मेरे पीछे पड़ गया, उसने मेरे को जाने नहीं दिया, बोले कि मैं भी भूल गया हूँ, मेरा फोन बंद कर दिया उसने, सारा कुछ बंद कर दिया। अब मैं घबरा गई, मैंने कहा, बोले अपन यहीं सो जाते हैं। मैंने कहा भाई अब तो गई रेनू, आज तो तू गई।
फटाफट गुरुजी को फोन किया, सुनील शर्मा जी को, और मैंने अपनी लाइव लोकेशन भेजी। उन्होंने वहां से चेक किया, फिर उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन दी कि राइट मोड़ो, अब लेफ्ट मोड़ो, ऐसे ऐसे करके मैं करीब वो किलोमीटर 2-3 किलोमीटर ही था, मैं उस पहुंच गई। पर मेरे उस पीरियड में 2-2.5 घंटे खराब हो गए। वो खराब होते ही मेरा सारा आगे का शेड्यूल खराब हो गया। जहाँ मुझे 3 बजे पहुंचना था, मैं सुबह 6 बजे पहुंची। जहाँ मुझे 6 बजे निकलना था, मैं 9 बजे निकली। तो इसके कारण मेरी जो पीवीपी 90 आवर्स में खत्म होनी थी, वो 92 आवर्स में हुई। 2 घंटा लेट हो गए। तो मेरी वो मतलब मेरे को लगता है 89 में ही हो जाती मेरी उस समय। मेरे पास इतना मार्जिन था। पर मैंने बहुत लोड लेके नहीं किया, और मैंने बहुत प्रेशर में भी नहीं किया, अपनी मस्ती में अकेले एंजॉय करते हुए चलाया। वेरी गुड, गुड। तो कैसे, दिस वाज इन 2019 राइट? वो एलईएल कब थी? एलईएल 2022 में। हाँ, तो वो कैसा था प्रिपरेशन? और उसका प्रिपरेशन मैंने थोड़ा किया। मैंने इंडोर, उस समय मैंने आपसे बात भी की थी शायद कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है। फिर मेरे को रमा मैम ने बताया कि मैं ले रही हूँ, तो फिर मेरे को सिद्धार्थ ने नंबर भेजे कि आप भी ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा उस समय क्या, मैं जोधपुर और जयपुर के बीच में बहुत सफरिंग थी। 2 जगह, एक घर जयपुर एक घर जोधपुर, तो मेरे को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कभी तो मैं राइड करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो मैंने ट्रेनर खरीदा और घर पे ही मैंने अपनी प्रैक्टिस की। बाहर मैं करती थी 60, 70, 80 किलोमीटर, घर आके मैं 30, 40 किलोमीटर पूरे एलिवेशन लेके करती थी। मैं वो नहीं देखती थी कि मुझे स्पीड कितनी लेनी है, मैं सिटिंग की ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी कि सैडल पे मेरी बैठने की प्रैक्टिस बहुत हो, ताकि मैं चला सकूं। अगर सैडल पे नहीं बैठ पाई तो फिर मैं नहीं चला पाऊंगी। तो मैंने घर पे इस तरह से प्रैक्टिस की, और करीब 1 साल मैंने एलईएल जाने के लिए प्रैक्टिस की पूरी। सुपर सुपर। तो एलईएल का उसके पहले मैंने ये दिल्ली से बॉम्बे वाली राइड की। दिल्ली से बॉम्बे। फिर मैंने 6 डे एसआर किया, 5 डे एसआर किया। 5 डे ऐसा इसलिए किया जिससे कि 15 दिन में आप 5 दिन में 1500 कर सको, तो आपको पता चल सकता है कि आप ये सब, इफ यू आर एबल टू डू ऑल दिस, तो एलईएल वो सब ये प्रैक्टिस, एलईएल की प्रैक्टिस भी वही है ऑलमोस्ट। आप 15 दिन में, 5 दिन में वो भी 1500 कर रहे हो, ये भी 1500 कर रहे हो। वही। तो ये दिल्ली मुंबई वाला क्या? ये दिल्ली में चियोज ने करवाया था, दिल्ली से बॉम्बे राइड। वो करीब 280 किलोमीटर पर डे था। तो वो भी एक प्रैक्टिस टाइप ही थी। उसमें हम लोग कंटिन्यू चलाते थे, रात को रेस्ट करते थे, अर्ली मॉर्निंग वापस चलाते थे। तो एक आपकी कैडेंस की अच्छी प्रैक्टिस हो गई मेरी उससे। और 5 डे एसआर में भी एलिवेशन थे, ये धर्मशाला। तो 5 डे एसआर जलंधर जाके किया लिजनर्स के लिए समझने के लिए, 5 डे एसआर ये है कि 5 डेज में वो 200 करो, 300 करो, 400 करो, 600 करो। तो सबसे पहले हमारी होती थी 600, फिर होती हमारी 300। 300 के बाद 600 के बाद थोड़ा गैप मिल जाता, रात को रेस्ट हो जाता था। फिर 300 चालू, तो रात को 10 बजे वापस आ गए। फिर 400 चालू होती थी, वो सुबह खत्म हुई, और तुरंत ही जो उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ, जो 27 आवर्स का, और तुरंत ही 200 चालू हो जाती थी। तो भी 600 ही हो गई ऑलमोस्ट। वही तो वो हमने खत्म की सुबह। वो भी हमारी 400 थी धर्मशाला तक, पूरी चढ़ाई थी, और पूरी वापस डाउन था, फिर वापस चढ़ाई थी, और 200 भी वापस चढ़ाई थी। तो उसमें एलिवेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी मेरी। तब मेरे को वहां जो रोहित जी थे, उन्होंने बोला कि हम आपको पीछे से ये देख रहे थे कि आप चढ़ाई में कैसे चढ़ाते हो। अब तो एकदम कूल होके आराम से चलाते हो, आप बहुत एफर्ट नहीं लगाते हो। हाँ, वो स्मूथली ऊपर चढ़ते हो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप जो देख रहे हो तो आपको पता होगा। मैं तो चला रही हूँ, मैं मेरे चलाती हूँ बस। वो सिंप्लिसिटी तो हद नहीं है। तो जो ये हाउ मच बिफोर एलईएल वाज दिस? कितना पहले था ये एलईएल से पहले? ये राइड मैंने 2020 में की, 5 डे एसआर। और 2000 में ही 20 में मैंने ये दिल्ली से बॉम्बे किया। और उसके बीच में एक एसआर और किया। वहां जाने के पहले फिर 2022 में वापस एसआर किए, 2-3 एसआर किए, 6 डे एसआर किया सोनीपत जाके। फिर एक राजस्थान टूर किया मैंने। हाँ, उसमें 1200 किलोमीटर 5 दिन में।
वो क्या थी? आप वो भी अकेली हमने थी या? नहीं, हम लोग राजस्थान के करीब 12 लोग थे, हम्म, और उसमें पहले दिन कोटा गए, फिर उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर होते हुए पूरा एक लूप लगाया। फिर लास्ट दिन 20 मार्च को अपना कोविड वाला हो गया था, तो उसमें खत्म हो ओह, गया। जस्ट बिफोर कोविड लॉकडाउन। लॉकडाउन, उसी दिन लॉकडाउन लगा, हमारी राइड खत्म हुई और लॉकडाउन लगा। आप खत्म नहीं किया तो लॉकडाउन नहीं होता था। आप चलते रहते होंगे अभी चलते तक। रहते, हाँ। वेरी तो गुड। अच्छा था, वो प्रैक्टिस के पार्ट थे सारे। तो एलईएल जाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि एलिवेशन वहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, राइट। ग्रेडियंस 20% ग्रेडियंस था वहाँ पे एलईएल में। एलईएल में ये सब ऊपर नीचे होता था, हाँ हाँ होता रहता है ना वो एलईएल में। एलईएल में तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था एलईएल अच्छा का? था। एलईएल का एक्सपीरियंस अच्छा था मेरे साथ। 1600 किलोमीटर्स था ना? 1550 1550। उसका टाइम था। 128 लंदन, घंटे एडिनबरो, लंदन, हाँ। उसका था टाइम 128 आवर 32 मिनट सेकेंड, 32 मिनट्स। ओके। वो मैंने किया 124.32 में। आप चार 4 घंटे घंटे बच गए। पहले। उधर के 2 घंटे बचाए ना, इधर के अपने इधर में नहीं किया। बहुत सही। तो आप यहाँ कैसे चली थी कि लाइक मैं प्लानिंग कैसी थी और नेविगेशन वो सब ठीक नेविगेशन रहता? हमारा गड़बड़ था, क्योंकि मेरी नेविगेशन प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं आती है चीजें करनी। मेरे साथ रणवीर पूनिया था, जो आर्मी बैकग्राउंड से था, हम दोनों साथ कर रहे थे। तो हमने मेरे गार्मिन में डाउनलोड कर दिया था, पर जब वहां जाके चलाया तो वो नहीं चला। फिर पता पड़ा कि इसमें यूएस मैप, यूके का मैप डाउनलोड करना है, वो हमने किया नहीं, तो हमारा चला नहीं। तो फिर हमने एक मोबाइल होल्डर खरीदा, मोबाइल पे राइट टू जीपीएस चालू किया, और फिर उस पे लगा के, और वो भी मेरी साइकिल का हैंडल क्योंकि छोटा है, मेरी एक्स्ट्रा स्मॉल साइकिल है, तो मेरे साइकिल पे कुछ भी नहीं लग सकता। तो रणवीर पुनिया के एरो बार लगा के उस पे उसको लगाया, फिर उसके सारे हम दोनों नेविगेशन से चलते गए और चले। उसकी साइकिल पहले 100 किलोमीटर के बाद पंचर हो गई थी, तो उसमें हमारा टाइम, हमने फर्स्ट 100 किलोमीटर 3.5 घंटे में कर लिया था, बहुत फास्ट चले। फिर हमारे पास टाइम, हम पहले से टाइम बचाते गए थोड़ा थोड़ा। पहली रात हम सोए भी नहीं, कंटिन्यू चले। और 600 पे उसका 400 पे उसका व्हील का कुछ प्रॉब्लम हो गया, चैन उतर रहा था। तो फिर 600 पे किसी ने 5 या 600 पे किसी ने, पंजाब के राइडर ने कोई राइड छोड़ी थी, ड्रॉप कर दिया, उसका व्हील लिया, उसका व्हील उसमें लगाया, फिर हमने वापस राइड चालू की। और लास्ट के जब 1-2 जगह हम रात में सोए भी थे, हम टोटल एलईएल में हमको ये 6 या 7 आवर्स सोए होंगे, कंटिन्यू चले। Only 6 or 7 hours for the entire thing. और लास्ट वाले जब 50 किलोमीटर बचे, तब रणवीर बोला कि मैम अभी तो अपने पास बहुत देखो टाइम है ना, अपने को 28 घंटे में करनी है, तो अपन यहाँ आज बैठ के कॉफी पी लेंगे। वो डरते डरते बोला, मैंने उसको कहीं बीच में रुकने नहीं दिया ना, मैंने रास्ते में कहा कंट्रोल पॉइंट पे रुकना है, और रास्ते में कहीं नहीं रुकना है, पानी के लिए नहीं रुक सकते, चाय पीने के लिए कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि हर थोड़ी देर में तो कंट्रोल पॉइंट है, 50 60 70 80 किलोमीटर पे तो है ही है, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैं उसको रुकने नहीं देती थी। तो बोला कि अब यहाँ रुक जाएंगे। मैंने कहा यहाँ भी नहीं रुकना है, मुंह धो, अपने पास वो सत्तू का पानी है, उस बोतल में डाल, पी और चल। बोले मेरी गर्दन दर्द हो रही है। मैंने कहा खत्म कर ले, अपने को ये मत सोच कि 128 घंटे, अपने को ये मान के चल 125 घंटे ही है अपने पास, ये एक्स्ट्रा अपने को रिजर्व रखने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अपने साथ, तो अपने मान के चल 125 तो व्हील का प्रॉब्लम हो गई, हाँ, ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी हो गया तो आप मान के चलो कि आपके पास नहीं है। तू जैसे ही खत्म होगा मैं तेरे गर्दन भी दबा दूंगी, तेरे पाँव भी दबा दूंगी, तेरे को चाय भी पिला दूं, अभी चल। बहुत सही। तो हम दोनों ने बेचारे एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मैम मैं नहीं चलूंगा, या जैसे जैसे मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती गई वो चलता गया, और हमने आराम से वो राइड फिनिश करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी वो था 22 में। अभी रिसेंटली आप जाके आई नॉर्थ केप, वो दैट इज लाइक 4,200 किलोमीटर। माय गॉड,
So ये it's like 1200 हो गया, 1500 1500 हो गया, 1600 हो गया. I mean, it's like there is not like 4200. तो कैसे हुआ? 22 के बाद मेरी ये हाथ ऐसे रह गए थे. हाँ. मतलब जो ऐसे नहीं होते जो भिखारी हाथ मांगे दाता के नाम तुझको ला रखे. मेरी अंगुलियां सीधी नहीं होती थी. हाँ. 4 महीने लगे, मैंने राइट नहीं की. numbness आ गई थी हाँ. पूरी. फिर मैं, मेरी सिस्टर के प्रॉब्लम हो गई तो मैं यूएस 4 महीने चली गई. आई और मैंने पटियाला में आगे की मैंने कुछ करने के लिए, कोई भी राइड करनी, मेरा तब पीवीपी जाने का मन था वापस आके. 23 में जो था तो मैंने कहा पीवीपी जाऊंगी आके. तो मैंने फरवरी में बोल के रजिस्ट्रेशन लेट करवाया कि डेट लेट करवाई एसआर की, 6 डे एसआर की, कि मैं यूएस से आऊंगी तो मैं 14 फेब से वो ज्वाइन करूंगी. तो मेरी टिकट मैंने बेटे से बोला कि जनवरी एंड तक की करवाना वापस आने की. उसने मेरी 8 फेब की करवा दी. अब मैं परेशान, मैंने टिकट चेंज करवाई यूएस से और मैंने 31 जनवरी के कराए और मैं पहुंच के 1 या 2 बार राइड करके मैं पटियाला राइड करने चली गई 6 डे एसआर की. इसमें जाना है मुझे. तो मैंने 600 किया, 400 किया और इसी टाइप का फॉग था. 300 के दिन मैं निकली, करीब 10 मिनट ही नहीं हुए होंगे और मैंने उसी दिन पहली बार ही, मतलब कभी भी राइड के पहले मैं फोन कम ही करती हूँ मेरे हस्बैंड को या किसी को. मैं उस दिन फोन किया कि मैं निकल रही हूँ अभी. करीब निकले और बीच रोड पे ऐसे डिवाइडर था. ये ऐसे डिवाइडर होता है बीच में और 2 रोड ऐसे निकल रही थी. एक सीधी जा रही थी और ये तो बस स्टैंड की तरफ जा रही थी. मैं अपनी लेन में सीधी चल रही थी, मुझे वो डिवाइडर दिखा नहीं. फॉग थी. तो मैं उससे हिट हो गई. हिट होते ये लगा तो हाँ, चिन को लगा, उछल के ऐसे गिरी. तो मेरे दांत अभी भी आगे के 4 ये हिलते हैं. खाने के हैं और दिखाने के हैं. खाने के नहीं है, दिखाने के, हंसने के लिए. और मुंह में मेरे ऐसे टाके लगे, ऐसे टाके लगे, 25 टाके मुंह के अंदर. यहाँ टाके लगे. मेरी वो राइट छोड़ी मैंने, यहाँ मेरे फ्रैक्चर था, यहाँ फ्रैक्चर था, सिर में यहाँ फ्रैक्चर था. फिर वो ड्रॉप की. कवर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया. कवर हॉस्पिटल ले गया. उसने अपनी भी राइड छोड़ी 300 मेरे साथ लगा रहा. उसकी वाइफ मेरे साथ लगी रही. मेरी जो जयपुर से ये लोग सब घर वाले आए. और मतलब अच्छा वाला एक्सीडेंट था मेरा. बहुत भयंकर था. मतलब इतने से 1 मीटर डिस्टेंस में भी मुझे वो दिखा नहीं फॉग में. तो मैंने वो एसआर छोड़ा, 2 ही किया. और फिर जोधपुर आई तो फिर मेरी 200-300 बच रही थी. तो बेटे ने कंवर को फोन किया कि मम्मी को कहीं डर नहीं बैठ जाए, आप मम्मी की ये बुला के और करवा लेना. फिर मैं वापस टेंडम पे किया 200 और 300 किया. टूटे हुए मुंह में, हाथ में किया. थोड़ा फ्रैक्चर था तो थोड़ा ठीक हो गया, महीने भर बाद उतर गया था. तो मैं बस सपोर्ट के लिए पकड़ के रखती थी. और that is incredible. Wow. And also, you know, to in that condition to do it on tandem is also, you know, something to be said about the friends you have, the people around you to kind of support you also. बहुत supportive. And you know, your son who realized that you need to do this and called for support. This is incredible. मेरा हुआ 18 फेब को और मैंने अप्रैल में ये वापस 200 किलोमीटर करने जलंधर गई. वो किया, 300 किया और मैं वापस आके 10 मई को मैंने सोचा अब मैं अकेली थोड़ी वापस प्रैक्टिस करती हूँ चलाने की. तो मैं अपनी एमटीवी पे, मेरे पास आईटीएम की है एमटीवी, मैं उस पर निकली वापस करने. सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, 7:30 बजे वापस मोटरसाइकिल, हम 4-5 लोग आराम से साइड में चल रहे हैं, पीछे से हिट किया, उछल के रोड पे. क्या it is so, it's becoming so unsafe nowadays. कि ये मोटरसाइकिल, कार, हाँ. तो फिर क्या हुआ था? फिर वापस वही सिर में वापस हेलमेट टकराया और सिर पे फ्रैक्चर था. एलईएल में भी मैं गिरी थी. लास्ट में 1000 के ऊपर नीचे डाउन ही ला रही थी और टर्न ले रही थी. नींद का झोंका आया तो मैं पट के दूसरी तरफ जाके गिरी. तो वही सिर में लगी, ये वाला पूरा हो गया.
और फिर पर मेरे को लगा कि मैं और रणवीर पुनिया उस समय अलग अलग हो गए, क्योंकि ढलान थी तो कोई दिख नहीं रहा, मेरे को लगा वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई। तो कुछ लोग अंग्रेज लोग जा रहे थे राइडर, मैं उनके पीछे लगे, मैंने कहा ये निकल जाएंगे, तो मेरे पास नेविगेशन भी नहीं था कि मैं जाऊंगी कैसे। फिर उनके पीछे पीछे उठी, उन्होंने बोला कुछ ऑल राइट, मैंने कहा हाँ। उठाई साइकिल, देखा साइकिल को कुछ अपना नहीं देखा मैंने कि मेरे को कुछ हुआ है, साइकिल को कुछ नहीं होना चाहिए। उठाई और वापस उनके पीछे पहुंची और मैंने वो खत्म किया। काफी लंबा गैप, करीब 40 किलोमीटर बचा हुआ था कंट्रोल पॉइंट, चलाया और हो गया पूरा, क्योंकि 500 बचे थे तो लग रहा था कि ये फिनिश तो करना ही है, लगा हुआ देखा जाएगा बाद में। अभी ये जो आप बोल रहे थे एक्सीडेंट जो मोटर बाइक वाला टकरा है, तो कैसे फिर हम लोग सिर में था, फिर अनकॉन्शियस जैसी हो गई थी, तो हमारे साथ राइडर थे, तो जोधपुर में हमारा ही हॉस्पिटल है, तो फटाफट वहाँ ले गए, तो सीधा वही सीटी स्कैन और सारे, फिर रेस्ट वापस हुए। मैं वापस पीछे आ गई बहुत, उससे मेरी, अब मैंने देखा कि मेरी ना स्पीड में अप्रैल में था, मई में 10th में 23 इसी साल में, पिछले साल ही। उसके बाद मेरी थोड़ी सी अब स्पीड थोड़ी कम हो गई, जो मेरी इतनी एंटीबायोटिक और इतनी दवाइयां लेना, फिर मेरा वापस मुंह का ऑपरेशन हुआ, दांतों का ऑपरेशन हुआ, फिर मेरे को सीवियर वो हो गया इन्फेक्शन, तो घर पे ड्रिप चढ़ाने आ रहे थे, ओटी से इन्फेक्शन हो गया मुझे ऑपरेशन थिएटर से, तो घर पे ड्रिप चल रही है 8-10 दिन तक, निकली नहीं मैं, तो मेरे को मतलब 1 साल अक्टूबर नवंबर तक टिल मेरे 23rd में दवाइयां ही चल रही थी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अब जाके मैंने वापस अपनी राइड चालू की, उस टूटे फूटे में भी 3 SR किए मैंने। आप रुकती नहीं हो? क्या इस बीच धनुषकोडी भी करके आई, रामेश्वरम धनुषकोडी टेंडम पे। ओ राम, मैंने 3 ऐसा टेंडम पे किया है। ओके। तो अभी जो आप किए थे नॉट कैप, वो कैसा चला था? वो अच्छा चला। वो मेरी हमारे साथ नितिन सैनी ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा कि तुम वो करने चल रहे हो क्या दिल्ली कलकत्ता? बोले नहीं, अब रात की राइड नहीं, अपन नॉट कैप करने चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन हो तब बताना। तो उसने बताया, रजिस्टर कर लिया, और फिर तो कैसे where does it start from, where does it go to, and इटली से स्टार्ट हुआ, और उनका अनसपोर्टेड था, कोई सपोर्ट नहीं है आपका, आपको ये सब कुछ मैनेज करना है, आपको कपड़े भी आपके साइकिल पे हैं, आपको खाना भी, आपको रहना भी। तो नेविगेशन उन्होंने 11 फाइल बना के दे दी थी हमको, हर फाइल के हिसाब से चलना था। 4 उनके गेट थे, वो गेट क्रॉस करने थे और सील लगवानी थी, जैसे BRM में होता है वैसे सेम। प्लस उनके हमको उन्होंने ऑनलाइन वो दे दिया था, उससे वो वॉच कर रहे थे हमको कि हम कहाँ पहुंचे। ट्रैकर था। और हम लोग करीब पहले दिन 2 दिन तो हमने होटल बुक कराई, पर हम उस हिसाब से अपना नहीं कर पाए। पहले दिन तो हम जैसे तैसे पहुंच गए, दूसरे दिन वाली हमारी होटल हमने वापस करवाई, क्योंकि बारिश बहुत थी। हम 170 ही चल पाए पहले दिन, 225 चले, 225। दूसरे दिन हम 170 ही चल पाए, बहुत बारिश थी। हम रात को वहीं होटल बुक करा के। इसका कैसे चलता है वो, ये you can ride certain distance every day and plan हम लोग to stay. 50 किलोमीटर चलते थे और फिर डिसाइड करते थे कि हम आज कितना चल पाएंगे। कि 50 में हमको आइडिया लग जाता कितना एलिवेशन है, इतना हमको टाइम लग रहा है, और फिर हम देखते कि उस रूट पे कितने पे हमको होटल मिल रही है। That is important. वो ज्यादा जरूरी था कि अगर हमको 280 पे मिल रही है तो हम 280 पे कर लेते थे, अगर 250 पे मिल रही है 250, अगर 170 पे मिल रही है तो 170, डिपेंड ऑन टाइम। क्योंकि अगर हमारे पास होटल है तो हम रात को 2 बजे भी पहुंचेंगे तो चलेगा। अगर हमारे पास होटल ही नहीं है तो हम 2 बजे पहुंच के भी क्या करेंगे, तो फिर हमको रात भर चलानी है। तो कितनी बार ऐसा होता था कि हम होटल बुक करने में लेट हो जाते थे, तो वो सोल्ड आउट हो जाती थी, हमको नहीं मिला। तो हम लोग एक बार तो ग्रोसरी की जो ट्रॉली रखते हैं वहां साइड में जगह रख के वहां सोए।
फिर वहाँ ठंड लगी तो उठ के 40 किलोमीटर चला के कहीं एटीएम मिला वहां जाके सोए। फिर सुबह उठ के कहीं मैकडोनल्ड मिला वहाँ फ्रेश हुए, मुंह धोया, खाया पिया थोड़ा, फिर चल दिए। तो इस तरह से हम लोग होटल बुक करते थे और चलते थे। बहुत बार हमको 3-4 बार हमको होटल नहीं मिली तो बस स्टैंड पे सोए। एक बार हमने होटल बुक कराई तो वो अंदर 14 किलोमीटर अंदर हो गई। वो रूट से थोड़ा सा हमने गड़बड़ देख लिया तो अंदर भी, अब 14 किलोमीटर अंदर जाना और वापस 14 आना कोई वर्थ नहीं था, हमने छोड़ दिया वो। हम लोग रात भर चलते रहे, बस स्टैंड पे जाके सो गए। फिर सुबह मैं कहीं ग्रोसरी में जाके मुंह धोया। और राइट। प्लस हम प्योर वेजिटेरियन तीनों ही थे। तो हमारे को तो दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत तो बहुत ज्यादा तो नहीं हुई, हम मैनेज किया। तो हमने सिर्फ क्रोसॉन, केला, चिप्स, दूध और टॉफी, इन्हीं के, और ड्राई फ्रूट्स, इनके भरोसे ही हम चले। 20 दिन हम यही खाया, जहाँ पिज्जा मिल गया वहाँ पिज्जा खा लिया। कितनी बार क्या होता था कि हम लोग निकलते थे और जंगल में ही होते थे, हम उस दौरान वहाँ पहुंच ही नहीं पाते जहाँ खाने का कुछ मिल रहा है, तो हमको नहीं मिलता था। तो फिर ग्रोसरी से चटर पटर कुछ उठाया, केला उठा लिया या क्रोसॉन उठा लिया और फिर रात को जाके खा लिया। कितनी बार सुबह हम केला खा के निकलते थे कि 50 किलोमीटर मालूम है कुछ नहीं मिलना है, 9:30 के पहले कोई भी कुछ नहीं मिलेगा, तो हम 2 केले में ही हम 4 घंटे 5 घंटे चल रहे हैं। तो वो सारा चीजें बनती रहती है, आप निकालते रहते हो रास्ते, और पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर सकते इसमें लॉन्ग डिस्टेंस में। तो अभी क्या स्टार्ट इन इटली, क्या क्या टच करके हम लोग हमने इटली से निकले जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। सब देख लिए आप एक ही राइड में? सब देख लिया, 8 सब कवर कर दिया, क्रॉस करी हमने। और वो भी अंदर जंगल के रास्ते से, और उनका ट्रैक जो होता था साइकिल ट्रैक पर से, काफी हम लोग हाईवे पे भी चले। वो बहुत रिस्की था उनका हाईवे पे चलना, क्योंकि स्वीडन, नॉर्वे की तरफ ट्रैक कम है। हाईवे से निकले तो इतनी बसें पास से निकलती है कि वो अपनी स्पीड से निकलते, हमको नीचे उतरना पड़ता था कितनी बार। अपने जैसे लोग भी हैं वहाँ पे, जो इंडिया में जिस तरीके से लोग करते हैं बदमाशी, हम लोग चल रहे हैं तो हमारे ऊपर कोक का केन निकाल के गाड़ी में से फेंक दिया, या गाड़ी साफ करने का ब्रश जो डंडा लंबा वाला था वो फेंका। तो मैंने वो, उनको नहीं पसंद आते होंगे साइकिलिंग वाले। अब ये तो नहीं पता पड़ा कि इंडियन चल रहा है कि पीछे से देख रहे हैं कि साइकिल वाला है। नहीं, ये रहते हैं वो साइकिलिस्ट को, आई मीन उतना पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते। बहुत से वहाँ लोग थे, हम उनके घर के बाहर सो गए तो उन्होंने उठा दिया। दिन में थोड़ी सी नैप, सोचते कि 10 मिनट का नैप ले लें, ये पब्लिक प्लेस नहीं है, अभी पुलिस को कॉल कर देंगे। वो उठ के रवाना हुए। बहुत से लोग हेल्प करते थे, पानी भी ला के देते थे। तो डिफरेंट तो आपको सब तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं। तो सब तरह की चीजें देखने को मिलती है, कल्चर देखने को मिल जाता है। ऑस्ट्रिया में सब साइकिल पे ही लोग चलते हैं, पूरा मार्केट ही साइकिल से भरा हुआ है, सब लोग साइकिल पे। डेनमार्क में भी लोग सब साइकिल पे ज्यादा चलते हैं, तो आपको प्रायोरिटी देते हैं आगे जाने की। आपको वहाँ तो साइकिल हाईवेज भी होते हैं। डेनमार्क वाले मैंने चलाया था 2015 ऐसा। They'll have cycling highways, वो सिग्नल्स भी रहते हैं साइकिल्स के लिए, और लोग भी हेल्पफुल रहते हैं, आपको पहले जाने देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो सब तरह के लोग मिलते हैं। पर हाँ, मजा आया। हम लोग लास्ट कितने दिन में हो गया था ये? 21 डेज का टाइम था हमारा। हुआ था 20 जुलाई को चला हुआ था, 10 अगस्त को खत्म होना था, तो हमने 7 अगस्त को फिनिश किया। Nice. You took away like 3 days. 3 days सेविंग हो गया। क्या किए थे 3 दिन में? 3 दिन हम जल्दी, हम लास्ट के दिन सोचा था कि आराम से, हम अब खत्म हो गया तो आराम से अब आज साइकिल नहीं चलाएंगे। लास्ट के रोवेलिनो जो सांता की जो जगह है वहाँ हम पहुंचे, जो नॉर्थ पोल का जो है वहाँ पहुंचे। वहाँ से करीब हमारा 400 किलोमीटर था। हम लोग टनल में से भी निकले, 7 किलोमीटर लंबी टनल थी और पूरी डाउन थी, और फिर वापस अप। वेट आप एक दिन गैप लिए? नहीं, कोई गैप नहीं लिया हमने, कंटिन्यू चले हम लोग। और टनल इतनी चिल्ड होती थी
हम लोग को इतना था नहीं कि इतनी चिल्ड होगी, उतर के हम जैकेट वैकेट पहन रहे हैं, फिर चल रहे हैं। और फिर हम लोग अपहिल में वापस, उसमें टनल में अपहिल थी, हम तो हमारे पैदल पैदल फिर लेके चले, क्योंकि इतना ट्रैफिक तेज आता था ना कि अब चढ़ाई चढ़ रहे हो, सामान साथ में, साइकिल आपकी डगमग डगमग होती है, तो हमने रिस्क नहीं लिया, आराम से हम पैदल वैदल भी चले। और काफी जगह हमारे रास्ते में 15-20 किलोमीटर हमको एक जगह पूरा कच्चा रोड मिला, जहाँ रोड बन रही थी, ग्रेवल बन रहा था, तो हम पैदल 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 साइकिल लेके करीब 15 किलोमीटर हम लोग 3 घंटे में फिनिश किया। वाओ, इट्स लाइक जस्ट वॉक क्योंकि रिस्क थी, अगर बाय साइकिल पंचर होगी तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि हमारा जो डेनमार्क से हम लोग फेरी से निकले और हम करीब थोड़ा सा निकले और चले और बारिश चालू हो गई, तो उसमें वो जो चूरी होती है वो रोड पे आ जाती है, जो कांच की तरह होती है, तो हमारे टायर पे चिपक गई। तो उस 1 घंटे में हम लोगों की 13 बार पंचर हुई। वाओ, माय गॉड। 13 बार। फिर वो ठीक करते, फिर हमारे साथ जो एक आशु था, उसकी साइकिल का गियर वायर टूट गया, फिर हमने ठीक कराया। पंचर कैसे? वो मालूम नहीं, वो टायर में चिपक गए, निकाले कपड़े से तो भी वो बार बार पंचर हो रहे थे। इतने ट्यूब्स थे आपके पास? हमारे पास 3 जन, तीनों के पास 4 ट्यूब लेके गए थे, तो वो हो गए हमारे पास। फिर लकीली डेनमार्क में जहाँ हमारा चेक पॉइंट ही था, जहाँ हमारे का कंट्रोल पॉइंट था, गेट था, वहां पे मेरे बेटे का फ्रेंड वहीं रहता है, तो हमने उसको फोन कर दिया, उसने वहां हमको ट्यूब ला के दे दी। अच्छा। 15 एक ट्यूब ला के दी, पुरानी ट्यूब सारी उसको दे दी, और 2-3 टायर भी हमने मंगाए, क्योंकि हमारे टायर भी खराब हो गए थे, और उससे हमारा फिर आगे का सफर निकल गया। तो हमारे जो साथ में था आशु, उसका एक बार गियर वायर टूट गया, फिर हमने गियर वायर ठीक कराया रास्ते में। फिर लास्ट के करीब हमारे 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर बचे हुए थे। वो नितिन के पीछे ग्राफ्टिंग करता हुआ चल रहा था। मैं उसको बोली भी, तू इतना चिपक के मत चल, टायर से टायर गिरेगा। वो नहीं माना, गिरा, उसका डिलेयर टूट गया। ओके। फिर वहां जाके हमने उसका वहां भी है कि वही जैसे BRM में कि आप अगर वहां से गाड़ी में चले जाओ तो फिर वही वापस ठीक शुरू करना। तो उसने वही किया, वहां गया, फिर वहां ठीक नहीं हुआ, मंगाया, बहुत परेशान हुए, वो वापस गया। फिर उसने चलाया तो उसका वापस डिलेयर टूट गया, नया लगाया वो भी, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं था, और उसका हैंगर भी टेढ़ा हो गया था। तो उसने शॉप वाले ने बोला कि अब मैं आपको एक पे सेट करके दे रहा हूँ, आप इसी पे चलाना, चढ़ाई आए तो उतर जाना, अगर आप इसको शिफ्ट किया तो फिर आपकी राइड खराब हो जाए। अब सिर्फ 400 किलोमीटर बची हुई की राइड तो खराब नहीं कर सकते थे, तो उसने फिर वैसे चला के। इसलिए कहते हैं कि आपको टाइम बचाना चाहिए, कब आपका टाइम कहाँ लग जाए आपको नहीं पता। फिर भी हमारे पास 3 दिन थे। तो ये फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं ना, ये इतने सारे पंचर हो जाएंगे। यही सारा डिरेलर टूट जाएगा, या कुछ भी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। बफर तो रखना चाहिए, बफर बहुत जरूरी, जल्द से जल्द चलना पहले में आपको जितना जल्दी कवर हो जाए उतना कवर करना चाहिए, क्योंकि आपके बाद में बॉडी भी थक जाती है, आपको रेस्टलेस भी हो जाते हो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो आपको नहीं पता, आपके सेट सोर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्रैम्प भी आ सकता है। तो पहले आप जितना लंबा खींच लो उतना अच्छा है, फिर बाद में तो आपको धीरे धीरे भी चलाओ, आपके पास जितना टाइम है उतना निकाल सकते हो। nice. तो हम लोग पहुंच गए, वापस आते हमने सोचा था कि अब तो हम आराम से गाड़ी में डाल के ले जाएंगे, वो हमारे भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। वहां पे हमारे को कोई कन्विंस नहीं मिला वापस नीचे आने के लिए। वहां पे ऊपर जाने के बाद सुबह ही वापस बस थी 12 बजे की, अब रात को वहां हम कहाँ रुकते, हम वापस उतरे पैदल पैदल। तो फिर राइड खत्म हो गया, खत्म होने के बाद हम वापस, और मेरा पूरे सेट शुरू हो चुके, एकदम छिल चुकी थी, बैठने की बिल्कुल ताकत नहीं थी साइकिल पे मेरी। फिर हम डाउन हिल में तो साइकिल पे बैठते, चढ़ाई होती तो हम वापस पैदल 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 चढ़ते, फिर लिफ्ट लेते, कोई लिफ्ट देता नहीं, फिर पैदल चढ़ाई आती, क्योंकि जितनी आप चढ़ रहे हो वापस आओगे तो उधर से वापस चढ़ाई तो मिलेगी मिलेगी आपको। और वो लास्ट के जो 30 किलोमीटर थे हमारे, वो पूरा चढ़ाई थी, 5 किलोमीटर स्टिप चढ़ाई थी, 2 किलोमीटर स्टिप चढ़ाई थी। तो वापस हम तो सोचे कि अब चलो चले गए तो वापस आते कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हम वापस, हमको जाने में हमको जो कम टाइम लगा उतना आने में उससे ज्यादा टाइम लगा। हम लोग करीब 3, साढ़े 3, 4 घंटे में हम नीचे पहुंचे, 30 किलोमीटर करने में। ओके।
चल रहे हैं उतर रहे हैं, चल रहे हैं उतर रहे हैं। फिर हम अल्टा पहुंचे, वहां से रात को उठे, वहां से हमको अल्टा की बस पकड़नी थी। तो हम सुबह करीब 10 मिनट लेट हो गए, तो हमको बस नहीं मिली, वो फुल हो गई। तो हम बस स्टॉप पे बैठे रहे, 11 बजे की बस मिली। 11 बजे की बस करने के बाद हम अल्टा पहुंचे। अल्टा पहुंचने का सबसे बड़ा टास्क था कि अब बाइक पैकिंग कैसे करें। ऑनलाइन हम बुक करा रहे थे, हमारे बॉक्स मिल नहीं रहे थे, कि बोलेगी वहीं आओगे तभी मिलेंगे, तो हमको मिले नहीं। तो फिर हमने बच्चों की साइकिल के बॉक्स लिए और उसको जोड़ जाड़ के और साइकिल अपनी खुद ने पैक करी। खोलना आसान है, जोड़ना फिर भी मुश्किल है। अब आना है तो बोले कैसे भी करके हम डाल दो बसेस पे। टायर खोले, आधी साइकिल नीचे डाली, आधी ऊपर डाल के उसको टेप से जोड़ जाड़ के हमने तैयार किया। उस चक्कर में हम होटल करना लेट हो गए। Okay. 4-5 बज गए, तो हमको होटल नहीं मिला। This is all after the फिनिश राइड। like वो राइड करना इतना मुश्किल है, उसके बाद भी ये सब था। अब हमारे को होटल नहीं, अब क्या करें कि चलो अपन एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाते हैं। एयरपोर्ट तो रात भर खुला ही रहता है। तो एयरपोर्ट पहुंचे तो मालूम पड़ा कि 11 बजे ये एयरपोर्ट बंद हो जाता है। छोटा एयरपोर्ट है, उन्होंने भी बाहर निकाल दिया। फिर हम लोग वहां पे जाके सोए, जो टैक्सी के क्यूब्स बने होते हैं वेटिंग वाले, वहां जाके सोए। इतनी सी सीट होती है, अब इतनी सी सीट पे सो तो सकते नहीं है, इधर उधर हुए। फिर नीचे, अच्छा हमारे गर्म कपड़े हमने क्या किया है, बॉक्स में पैक कर दिए। अभी वो भी नहीं है। तो पहनो क्या और ठंड में क्या करो। और हमारे पास कपड़े भी नहीं है, क्योंकि इतने दिन के गंदे कपड़े हो गए। हम 3 जोड़ी कपड़े में, हम 3 शॉर्ट्स लेके गए, 3 जर्सी ले गए, 5-6 जोड़ी मोजे ले गए, विंटर का, रेन का, और रात को एक पहनने का और एक जो पहन के गए। इससे अलावा हमारे पास कोई कपड़े नहीं। सब कपड़ों की तो वैसी ऐसी तैसी हो गई, वो पहनने की इच्छा भी नहीं हो रही है वापस, तो भी हम पहने हुए हैं। फिर जो जैकेट था मोटा, क्योंकि हमारे पास सामान लाए तब एक ही सूटकेस था, बैग वैग कुछ भी नहीं था। अब डालें किसमें, हमारे पास सामान किसमें डालें। तो वो भी उसमें डाल दिया, बॉक्स में पैक करते वक्त सब उसमें ठूस भर दिया। अब रात को, अब ठंड लग रही है, रात को हम करें क्या। तो जैसे तैसे रात निकाली, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट खुला, सब वापस एयरपोर्ट में गए, तो शांति हिली। फिर डेनमार्क आए, ओस्लो से डेनमार्क में एक दिन रुकी। फिर मेरी फ्लाइट थी वापस 10th की। पहले 14 की कैंसिल करा के मैंने 10th की कराई। एयरपोर्ट पहुंचे तो मालूम पड़ा हाँ जल्दी हो गया, तो हमने चेंज करा ली। तो वहां पहुंचे, 2 बजे मालूम पड़ा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो वापस घर आए, कि मेरी फ्रेंड के यहाँ आए, और फिर अगले दिन फ्लाइट जयपुर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। What an adventure! पूरा एडवेंचर था ये। This was in August. 14th अगस्त को हमारी लास्ट, क्योंकि मैं 17 अगस्त को वीजा भी खत्म हो रहा था। वहाँ का 1 महीने का ही मिला हुआ था, तो ज्यादा वैसे भी नहीं रुक सकते थे। तो वेरी गुड, इंटरेस्टिंग थी, मजा आया। मजा तो और हमें सुनने में भी बहुत मजा आया। आप इतने तकलीफ लिए, वो सुनने में हमें मजा आया। हर दिन एक चैलेंज था, हर रोज एक चैलेंज था कि आज क्या नया। रोज बारिश भी है, बारिश में भी पहन के चला रहे हैं। ये जो रात में वहाँ ठंड होती थी, रात में अच्छी वाली ठंड होती थी। दिन गर्म होता था, दिन अच्छा गर्म होता था, और रात एकदम ठंडी होती थी। This bikepacking or self-sufficient ultra races are challenging beyond your physical capacities, right? The challenges can be something all the mind game. So what do you tell आप yourself? जैसे इसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसे ही काम करेगा। आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, नहीं अब मैं थक गई, मेरी राइड खत्म करनी है, मुझे ड्रॉप करना है, तो आप माइंड आपको वैसे ही ट्विस्ट कर देगा कि छोड़ो, इसको नहीं हो रहा है। आप माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं ठीक है करते हैं, चल के देखते हैं, तो माइंड अपना चलाएगा उसको। तो आप उसको जो बोल रही है, जो इंटरनल डायलॉग है, वो पॉजिटिव रखना चाहिए। हाँ, तभी वो सब हो पाएगा। हाँ, नहीं तो जरा भी छोटा सा दिक्कत आ गई तो आप सोचते छोड़ो या कौन करे, नहीं। तो जब भी जितना भी बड़ा दिक्कत आई तो सोचना कि कैसे इससे निकलना चाहिए। हाँ,
मेरे साथ जो आशु और नितिन सैनी थे बहुत सपोर्टिव थे, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मुझे उन्होंने गार्मिन चलाना भी थोड़ा बहुत सिखाया। मैं पहले गार्मिन चलाना नहीं आता था, उन्होंने मैं फाइल डाउनलोड करके गई थी, फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करो, बाई चांस हम आगे पीछे हो जाए तब इसको देख देख के चलना। तो कितनी बार मैं उनका गार्मिन गलत बताया, मैं उनको इंस्ट्रक्शन देती नहीं नहीं अपन सही नहीं, तुम सही नहीं जा रहे हो, मैं सही जा रही हूँ। तो उन्होंने होटल बुक वो करते थे क्योंकि मुझे नहीं आता था ऑनलाइन कैसे करना है, कि उसमें 2 फोन साथ रखने पड़ते थे। एक पे हमको देखना है कि हम किस रूट से जा रहे हैं और एक पे हमको देखना पड़ता है कि किस रूट पे होटल है। तो दो जने मिलके हम लोग डिसाइड कर ले। पर हाँ, इसमें लंबे राइड में जाने के लिए आपके साथ 2 लोग होने चाहिए। अकेले अकेले में आप अकेले में क्या आप डिप्रेशन में आ जाते हो, अब क्या करें, कैसे करें। अब कोई एक जना साथ होगा, नहीं नहीं अच्छा होगा अपन कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपन ये नहीं ये कर लेंगे। तो एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे का सहारा मिलता है और पॉजिटिव वेव्स भी आती है। कोई डाउन हो रहा है तो उसको अपन पुश करते हैं, कोई धीरे चल रहा है तो अपन उसके साथ धीरे धीरे चल लेते हैं कि चलो इसको लेके चलते हैं। तो काफी बेनिफिट मिलते हैं। बहुत सही। तो अभी क्या है नेक्स्ट? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मेरे एक थैंक यू। आप जरा आराम कीजिए। अभी हम TFN कर लेते हैं। हाँ। आराम से। ये तो फुल्ली सपोर्टेड राइड है, आपको कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ दिक्कत की ये नहीं है। आप आराम से चढ़ते रहिए, चढ़ते रहो, चलाते रहो, बस चढ़ते रहो, चलाते रहो। अपनी फेस में देखा, अपनी फेस पे आप चलते रहो ना तो आप नहीं थकोगे। जहां पे भी आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया तो आप थक जाओगे। राइट। आप तो ट्रेनिंग देते हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। नहीं, सही बोल रही है आप, सही बोल रही है। तो कैसे अब तो हम TFN में हैं, टूर ऑफ नीलगिरीस में, आपको कैसे सुनने में आया, कैसे हाउ डू यू फील अबाउट द टूर? मेरे को इनका दीपक जी का 1-2 पहले मैसेज आया हुआ था, आने की इच्छा थी। फिर थोड़ा टाइम पहले रमा मैम से बात हुई तो रमा मैम बोली चल रहे हो क्या? मैंने कहा जाने का तो मन मेरा भी है, पर मेरे एक फुल तो शायद पता नहीं, उस समय तक फुल का ही था। तो उसमें हमारे कॉलेज के कन्वोकेशन थे 2 तारीख को, 7 तारीख को। तो मैंने कहा मेरा तो शायद, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से आगे उसकी बेटी की शादी, मैंने कहा पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। फिर रमा मैम बोली कि नहीं आधा ही है, तो मैंने कहा ठीक है अपन आधा करके आते हैं, जब तक ये दोनों मेरे काम भी हो जाएंगे और मैं इस वाले में आ सकती हूँ। तो फिर हमने अचानक ही, मैंने लास्ट 15 को तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है। नेक्स्ट ईयर तो आप फुल करना है आपको। हाँ, नेक्स्ट ईयर। ये तो क्या है, आपको 800 किलोमीटर्स आप तो 2-3 में कर लेती है, मगर ये आराम से करेंगे। नहीं, करना तो बहुत कुछ है। अब देखो, बस मेरे को कोई अच्छा मेरे को चलाने वाला साथ मिल जाए ना, जो मेरी थोड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम जो होती है, या मेरे कोई नेविगेशन की होती है, या होटल बुक करने की होती है, अगर ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे आप वर्ल्ड में कहीं भी ले जाओ, मैं राइड करने को तैयार हूँ। वेरी गुड। मैम, ये जो आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है। इट इट इज इंस्पायरिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट वुमेन बट every rider in general, right? So what are some of the learnings or tips that you would like to give? Age is just a number. आप किसी भी एज में कोई भी काम अगर सोच लेते तो कर सकते हो। और आपको कभी भी थकना नहीं है, आपको चलते रहना है। आप जैसे माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे, आपका माइंड वैसे ही आपका सपोर्ट करता है। आपको पॉजिटिव वे में चलना है, और हर इंसान में कैपेबल है वो। फिजिकल स्टेमिना हर किसी में है, बस आपको निकालने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है। किसी का जिम में होगा, किसी का रनिंग में होगा, किसी का स्विमिंग में होगा, है सब में। आपको किस तरह से आप निकालते हो और कैसे उसको प्रूव करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank you so much. That was my conversation with Renu. I hope you enjoyed that. If you are enjoying these podcasts and are finding them useful, please consider supporting the podcast by subscribing to it on YouTube as well as on your favorite podcasting app. It really helps. Thanks again for your continuous support. See you next week with another guest.